এইবাৰ আমি চন্দ্ৰযানৰ প্ৰসংগ ভাৰতে চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰ দখল কৰিলে চন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ খবৰ দিলে ভাৰতবাসীয়ে পালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী একবাৰে ক্ৰেডিট ল'লে বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে চন্দ্ৰযানৰ বিষয়টোক এটা ইস্যু হিচাপে ল'লে এই চন্দ্ৰযানক লৈ এটা ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে এই ৰাজনীতিৰ বাবে আমি সেই চন্দ্ৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके। पहली बात तो ये हंसी ये मजाक का पात्र नहीं है। चंद्रयान 3 जो आप ट्विटर पे ये कह रही हो कि अडानी अब रियल एस्टेट का काम करेगा, अडानी अब वहाँ पर ज़मीन बेचेगा। चंद्रायन को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद यह शक्तियाँ यह नामकरण जो किया गया है वो अपने आप में अद्वितीय है। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপিয়ে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় 9 বছৰ হৈ গ'ল কি কৰিছে কি নকৰিছে তাক আমি ক'বলৈ নাযাওঁ ভাল কাম কৰিছে বুলি ক'লে কংগ্ৰেছে গালি পাৰিব বেয়া কাম কৰিছে বুলি বিজেপিয়ে গালি পাৰিব কিন্তু ভাল বেয়াৰ কথা লৈ নকয় এটা কিন্তু ক'ব পাৰিম যে এইখন চৰকাৰে নাম সলনি কৰাত নাম্বাৰ 1 কেতিয়াবা ৰাস্তা পথ নাম সলাই দিয়ে কেতিয়াবা মিউজিয়ামৰ নামৰ নাম সলনি কৰি দিয়ে কেতিয়াবা দিল্লীৰ ৰাজপথৰ নাম সলনি কৰি দিয়ে ইয়াকে দেখি অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাজপথৰ নাম ঘনে ঘনে সলনি কৰি দিয়ে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চন্দ্ৰযান যি স্থানত অৱতৰণ কৰিছিল তাক শিৱ লগত তুলনা কৰি সেই স্থানৰ নাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে এই স্থানক আমি এতিয়া শিৱ শক্তি পইণ্ট বুলি নাম উল্লেখ কৰিম আৰু য'ত তিৰংগ পতাকাখন ৰখা হৈছিল সেই স্থানৰ নাম দিবা তিৰংগ পইণ্ট এনেধৰণৰ নাম ধৰিছিল এই নাম দিয়াৰ পিছতেই এটা বিভিন্ন সাধু সন্যাসী আগবাঢ়ি আহিছে এনে এজন সাধু সন্যাসীৰ মাজত এজন সাধু হ'ল চক্ৰপাণী স্বামী চক্ৰপাণীয়ে এতিয়া চন্দ্ৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কল্পনা কৰক এনে এখন ৰাষ্ট্ৰ য'ত কোনো মানুহেই নাই তাত জীৱ জন্তু আছে নাই ভগৱানেও নাজানে কিন্তু স্বামীয়ে দাবী কৰি দিলে যে চন্দ্ৰক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰি দিয়ক নহ'লে মুছলমান আহি চন্দ্ৰ দখল কৰি পেলাব इसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को कट्टरपंथी को फैलाए आतंकवाद को फैलाए इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए এইখন ভাৰতৰ সাধু সন্যাসীৰ প্ৰস্তাৱ এয়া চন্দ্ৰ যেন ভাৰতৰ প্ৰপাৰ্টি হৈয়ে গ'ল বিশ্বৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় চন্দ্ৰত মানুহ জন্মই হোৱা নাই লাভ জিহাদৰ কথা এটা চিন্তাই কৰি দিলে এইজন চক্ৰপাণীয়ে যি কি নহওক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মিত্ৰই লগে লগে এটা টুইট কৰিলে মহুৱা মিত্ৰৰ টুইটটোলৈ মন কৰিব মহুৱা মিত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে মহুৱা মিত্ৰৰ মতে মোদীজীয়ে এতিয়া মুনৰ নাম তিৰংগাৰ শিৱভক্তি কৰিলে আৰু আদানীয়ে অতি শীঘ্ৰে তাত ৰিয়েল ইষ্টেটৰ বিজনেছ কৰিব আৰু সমগ্ৰ চন্দ্ৰৰ অধিকাৰ আদানীয়ে পাব আৰু তাত মুছলমানক সোমাব দিয়া নহ'ব ভেজিটেৰিয়ান ৰেচিডেণ্ট হ'ব অৰ্থাৎ নিৰামিষ ভোজী তাত থাকিব এখন নতুন ফ্লেট হ'ব নতুন আৱাসিক অঞ্চল হ'ব বুলি
আদানীয়ে কৰিব বুলি আচলতে মহুৱা মিত্ৰই ঠাট্টা মস্কৰা কৰিলে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এই সাংসদগৰাকী এই ঠাট্টা মস্কৰাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অযোধ্যাৰ সাধুসন্তসকল। ইয়াৰে মাজৰে এগৰাকী সাধু সত্যেন্দ্ৰ দাস। সত্যেন্দ্ৰ দাসে মহুৱা মিত্ৰক কিদৰে সমালোচনা কৰিছে চাওক। मैं पुनः देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और देश में रहने वाले हर नागरिक को बधाई देता हूं कि ये क्षण, ये अवसर, ये पल पहला ऐसा विश्व का देश है जो भारत को मिला है। और इस प्रकार से टीएमसी के सांसद महुआ मित्रा जी, एक तो महिला है, दूसरी पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है और वहां पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या जाति हो रहा है, देश और दुनिया और पूरी मीडिया जगत के लोगों ने देखा है। पहली बात तो ये हंसी, ये मजाक का पात्र नहीं है। चंद्रयान 3 जो आप ट्विटर पे ये कह रही हो कि अडानी अब रियल एस्टेट का काम करेगा, अडानी अब वहाँ पर ज़मीन बेचेगा, वहाँ पर मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये क्या है? ये हंसी उड़ाना हुआ, मजाक उड़ाना हुआ। मजाक की बात नहीं है। आप एक, पहली बात तो महिला हो, दूसरी बात एक पार्टी के सांसद हो, तीसरी बात एक देश के जिम्मेदार व्यक्ति हो। और एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार से हंसी के पात्र वाला ट्वीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पहले तो पश्चिम बंगाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मारते हुए हिंदू, काटते हुए हिंदू, जलता हुआ हिंदू, प्रताड़ित हिंदू, इस पर कभी आपने आवाज नहीं उठाया। অযোধ্যাৰে মহন্ত ৰাজু দাস তেওঁ মহুৱা মিত্ৰক সমালোচনা কৰিছে এইদৰে। प्रकार से महुआ मोहत्रा टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। सारा देश प्रसन्नता से में है कि ऐसा कठिन हमारे देश, ये गौरव देश का है, हर व्यक्ति का है। वहीं टीएमसी का जो सांसद है वह बोल रहा है, व्यंग बोल रहा है इस प्रकार से कि कौन कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, मुसलमान नहीं जाने पाएंगे, शाकाहारी जाएंगे। ये जो तमाम आक्षेप जो तमाम बोल रहे हैं, ये क्या है? यहाँ फ्लैट बनेगा, इस तरह से बोलता है। यह है, इसको दर्द है, बहुत दर्द है कि ऐसा काम आश्चर्य में ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों कर लिया और नरेंद्र मोदी ने कैसे किया। इस प्रकार से उनको टीस है, उनको दर्द है। और इस दर्द जहाँ सारे देश के वासियों का प्रसन्नता है। चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके। पहली बात तो ये हंसी, ये मजाक का पात्र नहीं है। चंद्रयान 3 जो आप ट्विटर पे ये कह रही हो कि अडानी अब रियल एस्टेट का काम करेगा, अडानी अब वहाँ पर ज़मीन बेचेगा। चंद्रायन को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद यह शक्तियाँ, यह नामकरण जो किया गया है वो अपने आप में अद्वितीय है।